एक हमारे गवर्नमेंट की नॉर्म है, NABH, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उनको मैच करके ही हम हॉस्पिटल के फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पेशेंट को, क्योंकि हमारा जो भी इक्विपमेंट है वो डायरेक्ट पेशेंट के साथ रिलेटेड है, वो उसके ट्रीटमेंट में एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करता है। अगर उस प्रॉब्लम, उस मटेरियल में, उसके प्रोडक्शन में, उसमें कोई भी अगर कमी रह जाएगी तो वो डायरेक्ट हमारी लाइफ को हार्म कर सकती है, मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरह से हमें इफेक्ट कर सकती है, पेशेंट को इफेक्ट कर सकती है। तो बहुत जरूरी है कि हम उसकी प्रॉपर नॉलेज रखें, बहुत जरूरी है एक्सपीरियंस के साथ काम करना, हर चीज को ध्यान में, किसी भी पॉइंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। I am Jitendra Singh, banker turned entrepreneur and author of the book PEPHEC Mastering the Art of Selling. I welcome you to read my story where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs, and more. Today I have with me Miss Divya Kapoor. She is the founder of Surgical Hub, a woman empowerment motivational worker, a social worker, and counselor. She is in the business of manufacturing hospital equipments and furniture. She works for women empowerment by helping poor and needy girls in getting education other than basic academics such as abacus, Vedic maths, self-defense training, dance, etc. for free of cost. Also helping girls by providing them equal opportunity platform where they can showcase their skills and talent. She does counseling for needy women and children who are facing challenges with depression, trauma, or physical or mental abuse and work towards the betterment of their life and future. She has been facilitated for her work with many organizations, and she have been awarded top 100 masterpiece award, appreciation certificate by Mrs. Menka Rajiv Gandhi, Gaurav Hind award, Golden Global Business Excellence Award by MSME, Top 12 Super Achievers magazine cover page, August edition, Shakti Nari Samman Award, Rani Lakshmi by Samarpan Samaj Gaurav 2022 Award, Chief Guest and Speaker at the platform of United Nations, UNICEF. So today she will be discussing with us about her life journey. So welcome Divya ma'am, the platform is open and now over to you. Good evening, sir. How are you? Pleasure to have you here, ma'am. And let's start. But before Pleasure is that, all mine. sure, man. Thank you. And before we move on, I would like to request everyone to subscribe, like, share, and comment. And now, ma'am, if I talk about you, how did your past life has affected the person you wanted to be in your life and what you are? Being an Indian, being born in an Indian family, we always get pressurized in the family for a. It is very difficult for a girl child to live up on her dreams. जो भी हम सोचते हैं कि हम करना चाहते हैं लाइफ में, वो हमें करने के लिए अपनी फैमिली की सपोर्ट की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। और बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, और जिसका कोई ब्रदर ना हो और फैमिली बिजनेस की हो, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, तो काफी मुश्किल हो जाता है कि हम अपने ड्रीम्स को और फैमिली के बिजनेस को अलग अलग लेकर चले। तो बचपन से ही जैसे हमने अपने फादर को देखा कि कैसे उन्होंने इस बिजनेस को सेटअप किया, सर्जिकल के बिजनेस को, मैन्युफैक्चरिंग को, हॉस्पिटल, तो धीरे 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 जैसे बिल्कुल स्टार्ट से, जीरो से स्टार्ट करके वो एक पोजीशन पे इस बिजनेस को लेकर आए। बचपन से उनका स्ट्रगल देखा, तो वो एक सपना उसी तरह से डेवलप होता रहा कि क्योंकि एक भाई हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली उसके सिर पे आ जाती है कि वो एक अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। लेकिन जब ब्रदर ना हो तो फिर वो डॉटर्स के लिए के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है कि ये काम डॉटर भी कर सकती है। हमारी इंडियन फैमिलीज की मेंटेलिटी होती ही नहीं है कि हम पहले से ये चीज माइंड में लेके चले कि हाँ, बेटी भी इस बिजनेस को आगे लेके जा सकती है। तो बस उनकी सोच थी कि ठीक है, जितना डेवलप कर सकते हैं उसको करेंगे, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसको एक माइंड अप कर देंगे बिजनेस, बिकॉज नो वन इज देयर टू टेक इट फर्दर। तो बस बचपन से ही उस सपने को लेकर चले हैं, उसी सपने को जिया है कि नहीं, हमने इसी बिजनेस को संभालना है। अपने फादर की उस मेहनत को, जो वो अपने एफर्ट्स इस बिजनेस में डाल रहे हैं, उसे वेस्ट नहीं जाने देना है। तो बस यही सपना रहा है और उसी सपने को आज मैं बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रही हूँ, उसको जी रही हूँ। उसी को कंटिन्यू मैंने किया है, इस बिजनेस को, अपने फादर के। That's really great, ma'am. So you are taking the responsibility of taking it forward. ये आपने ये खुद से शुरू किया था?
खुद से स्टार्ट किया था, उसी को लेके कंटिन्यू आती, पहले उनके साथ दिया, फिर अब अपना इंडिविजुअली खुद भी मैं कर रही हूँ साथ में, उनका तो है ही सपोर्ट, और अपना इंडिविजुअल भी मैंने फिर स्टार्ट किया है अपना, और तो साथ में मैं काउंसलिंग करती हूँ। ये वाला जो बिजनेस है ये आपका ओन है, मतलब यू स्टार्टेड इट? या ग्रेट, सर्जिकल हब, इट्स माय ओन कंपनी। या तो दैट्स साथ रियली में, क्योंकि मैंने देखा है अपनी लाइफ में भी गर्ल्स को काफी स्ट्रगल करते हुए, हम स्कूल्स वगैरह भी अगर जाते हैं तो एक बेसिक स्टडी तो हमें गवर्नमेंट स्कूल्स में मिल जाती है पुअर गर्ल्स को, लेकिन उसके एक्स्ट्रा जो कुछ डांस, सेल्फ डिफेंस तो आजकल हर लड़की को रिक्वायरमेंट है, लड़की हो या लड़का। सेल्फ डिफेंस इज द वेरी बेसिक नीड जो मेरे हिसाब से स्कूल्स में भी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, लेकिन अभी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के स्कूल्स अभी इतना ज्यादा उन्होंने डेवलप नहीं किया है। तो जो तो पेएबल पेरेंट्स होते हैं, जो वेल टू डू हैं, वो तो अपने बच्चों को भेजते हैं एकेडमीज में, एक्स्ट्रा स्किल ट्रेनिंग्स के लिए भी भेजते हैं, लेकिन जो पुअर गर्ल चाइल्ड होती हैं वो नहीं जा सकती। वो स्कूल के एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन तो उनकी स्कूल में मिल जाती है, उन्हें वो भेज देते हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये चीज मैंने थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ में कि कुछ एकेडमीज के साथ मैं जुड़ी हूँ। अपने प्लेस पे भी मैंने एकेडमी को जगह दी है कि आप हमारे प्लेस पे आके जो भी टीचर का कुछ भी एक्सपेंडिचर होगा वो नहीं लगेगा, तो आप हमारे प्लेस पे आइए, हम बच्चों को इकट्ठा करेंगे, करते हैं, और उनको फिर जो इंटरेस्टेड हैं बच्चे करने में, जो टैलेंटेड हैं, जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है करने का, तो हम उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं कि वो हमारे पास आके टीचर्स उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं, ताकि उनका भी कोई खर्चा ना हो और बच्चे भी विदाउट ऑफ कॉस्ट उस चीज को सीख सकें और उसका बेनिफिट ले सकें जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो। करेक्ट। सो बिजनेस के अलावा ये आप एडिशनली, मतलब दैट इज योर पर्सनल इनिशिएटिव जो आप कर रहे हो? हाँ जी। ग्रेट ग्रेट। सो मैम, इफ आई टॉक अबाउट थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट इन योर लाइफ, तो कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनको लेके आप काफी पैशनेट हो? एक तो मेरा ये बिजनेस जिसको लेके मैं बहुत पैशनेट हूँ, जिसे मैं बहुत अच्छे लेवल पे लेकर जाना चाहती हूँ। आई वांट कि मेरे साथ साथ देखें पेरेंट्स की गर्ल्स को जॉब्स के लिए, तो अब आगे काफी हमारी मेंटालिटी चेंज हो चुकी है कि वो जॉब कर सकती है, लेकिन जॉब के अलावा वो एक फैमिली बिजनेस को भी टेक ओवर कर सकती हैं। इस सोच को मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा चेंज करूँ कि फैमिली बिजनेस को टेक ओवर करना सिर्फ एक बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बेटी भी बहुत अच्छे से उसको टेक ओवर कर सकती है। तो इसी पे मैं काम करना, ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहती हूँ। काउंसलिंग करती हूँ, लड़कियों को थोड़ा सा इंस्पायर करने की कोशिश करती हूँ ताकि वो इस चीज पे आगे चले। पेरेंट्स की मेंटालिटी चेंज होगी तो ही बच्चों की मेंटालिटी चेंज हो पाएगी। जब तक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी तब तक बच्चे नहीं कर सकते। हम बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको पहले तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। सो मैम, इफ आई टॉक अबाउट लाइक योर वर्क एंड एक्सपीरियंसेस, हाउ यू स्टार्टेड योर करियर, व्हाट ऑल यू डिड सो फार एंड व्हाट यू आर डूइंग नाउ? Actually, I started with aviation industry. I was an air hostess in Jet Airways. Then I worked in ground services at Indira Gandhi Delhi Airport. उसके बाद बस डेस्टिनी, इट वाज अ डेस्टिनी की शादी हो गई फिर बीच में, तो कुछ टाइम का ब्रेक ले लिया। फिर आफ्टर अराउंड 5 to 6 years ऑफ मैरिज इन 2011, तब मैंने थोड़ा सोचा कि यार अब आई कांट स्टे एट होम, बिकॉज स्टार्टिंग से मैं स्टडी में और वर्क में ही रही हूँ, तो काफी टाइम हो गया था। आई वाज सिटिंग एंड आई एम मैरिड इन अ वेल टू फैमिली, तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं थी करने की, बट जो लोग काम कर रहे हो शुरू से, वो थोड़ा सा रहता है कि नहीं बैठ सकते हैं, वी कांट वेस्ट आवर स्टडी और आवर टाइम जस्ट सिटिंग एट होम। तो बस फैमिली से बात की, इन लॉ से बात की दैट आई वांट टू डू माय बिजनेस, मैं अपने पेरेंटल बिजनेस ही अपना आगे ले जाना चाहती हूँ, उसी को मैं फर्दर करना चाहती हूँ। क्योंकि बिफोर मैरिज आई यूज्ड टू गो टू द माय फैक्ट्री विद माय फादर, तो बचपन से उनके साथ देखा था सब कुछ, थोड़ा बहुत हेल्प भी करती थी, तो नॉलेज थी उस बारे में, कहते ना खून में बिजनेस था। तो विद द सपोर्ट ऑफ माय इन-लॉज, उन्होंने परमिशन कहा कि ठीक है, तुम्हें कोई जरूरत, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। देन आई स्टार्टेड टू डू माय बिजनेस। तो बस वहां से ही धीरे धीरे शुरुआत करते हुए आज फिर मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। ग्रेट। So now you are full-fledgedly doing your business, और साथ में जो social services हैं वो चीजों पे आप engaged हो। Great. So on to this, अगर मैं, मेरा मानना है कि जितना हम समाज से ले रहे हैं, अगर उसका हम कुछ % भी वापस कर सके, तो I think we should do it. If we can, we should. Definitely, this is the objective of life. आप कहीं से आपको भी तो support मिल रहा है, तो your responsibility is also lies कि आप दूसरों को भी support करो. So really important. So ma'am, on to this further, like अगर मैं बात करूँ
कि आपसे आगे नेक्स्ट 5 से 10 साल अगर आपका विजन, मिशन, गोल वो क्या रहने वाला है? मेरा गोल ये है कि जिस तरह से हम लोग आजकल देखते हैं कि अगर हम किसी भी एक अच्छी कॉन्फ्रेंस में जाएं या किसी भी हम लोग बिजनेस मीट में जाएं तो हमें आपको वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो मैक्सिमम 5 to 10% से ज्यादा नहीं मिलते हैं। करेक्ट, एग्री। और समटाइम्स तो कई मीट्स में मैं देखता वो हूँ भी नहीं इट होते इज हार्डली 1 to 2% या ओनली। या मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, मैक्सिमम आज तक इससे ऊपर तो देखा ही नहीं है हमने। करेक्ट। तो मेरा गोल ये है कि जितना फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी है कि ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट इसको मैं डबल तो कर पाऊँ, 20% तो मैं कर पाऊँ कि जहां भी हम लोग जाएं, किसी भी बिजनेस मीट में जाएं, किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाएं तो वहां वुमेन एंटरप्रेन्योर को मतलब उसकी शॉर्टेज ना हो, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी उनकी बढ़े। करेक्ट। और सेकंड मेरा है कि मैं अपने बिजनेस को, अभी वर्ल्ड वाइड मेरा बिजनेस कुछ कंट्रीज में है जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं, मैं वर्ल्ड वाइड अपने कंपनी के नाम को ले जाना चाहती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में मेरी कंपनी के नाम को जाना जाए। कोई भी सर्जिकल हॉस्पिटल का नाम आए तो सर्जिकल हब शुड बी ऑन द टॉप ऑफ एवरीवन। राइट। तो अभी कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं? अभी कीनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम नेपाल में कर रहे हैं, मलावी में कर रहे हैं, अभी यही 2-3 कंट्रीज हैं। ग्रेट, रियली वंडरफुल कि मतलब आपने स्टार्ट किया खुद से और आप 2-3 कंट्रीज में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो और कंट्री में स्टार्ट करने वाले हो। तो मैम अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपकी पर्सनल जर्नी और प्रोफेशनल जर्नी रही है सो फार, सो उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स आपके जर्नी के रहे हैं वो क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स ये हैं कि लड़कियों के लिए बढ़ने के लिए पेरेंट्स की सपोर्ट और उससे भी ज्यादा उनके इन लॉज की और उसके हस्बैंड की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आपने अगर देखा होगा करियर वुमेन्स के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि या तो आप अपना करियर चूज कीजिए या आप अपने फैमिली को चूज कीजिए। अगर हम अपने करियर में ज्यादा जाना चाहते हैं तो हमारी फैमिली कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो जाती है। मेरे साथ भी ये चीज हुई। मेरी ट्विंस डॉटर्स हैं, एक बेटा है। उतना टाइम मैं उनको नहीं दे पा रही थी अपने काम की वजह से जितना मुझे एज बीइंग अ मदर देना चाहिए था। तो मेरी इन लॉज ने मुझे उस टाइम पे इतना सपोर्ट किया कि नहीं, यू कैन डू योर वर्क। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया स्टार्टिंग से कि आपको जो करना है करो। इफ यू आर कमिंग लेट देन इट्स ओके, इफ यू आर गोइंग फॉर आउट स्टेशंस देन इट्स ओके। मेरे पेरेंट्स इन लॉज हमेशा मेरे साथ थे मेरे बच्चों को संभालने के लिए, मेरे घर को देख, मतलब दे नेवर डिड एनी क्रिटिसिज्म टू मी। अगर वो थोड़ा भी क्रिटिसाइज करे फैमिली तो वुमेन के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब कुछ चाहते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी अगर आपको एक स्माइलिंग फेस से आगे ना बढ़ने दिया जाए तो वो आगे बढ़ा ही नहीं जाता है। करेक्ट। फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्रू। या दैट इज वन, लाइक एनी अदर लर्निंग व्हिच यू फील लाइक कि बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके लिए? अगर फैमिली साथ है तो हम दुनिया जीत सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। कोई भी बाहर की हर्डल, कोई भी बाहर की परेशानी आपको मैटर ही नहीं करती है। Correct. वो सब इतना स्मूथ हो जाता है मुझे। और मतलब यू नो एवरीथिंग इज वेरी नाइस आउट इफ यू आर फैमिली विद यू। या बिकॉज़ पीस ऑफ माइंड जो रहता है ना, दैट गिव्स यू अ पीस ऑफ माइंड। उसकी वजह से जो क्रिएटिविटी है, आपके थॉट प्रोसेसेस हैं, वो सही डायरेक्शन में काम कर पाते हैं। करेक्ट। सो एक्सपीरियंस होता है, अपने एक्सपीरियंस से आप काफी कुछ सीखते हैं धीरे धीरे। लाइफ काफी कुछ सिखाती है। That is really important because आप आगे बढ़ते हो तो काफी चीजें नई सीखने को मिलती है। So onto your business, like since you've been there for many years now, and उससे पहले भी आप अपने father के साथ में associated थी, तो मेरे को भी काफी क्यूरियोसिटी रहती है इस बिजनेस को लेके, on understanding point of view कि कैसे होता है। तो अगर हम बात करें कि what are the key considerations when manufacturing of hospital equipments and furnitures are there, like how to ensure that they meet specific needs, requirements for the healthcare like facilities or hospitals, तो उनके कुछ सेट नॉर्म्स होते हैं ना, वो मीट आउट करना बहुत मैंडेटरी होता है जो, और उसके बारे में नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहता है कि हम जब किसी हॉस्पिटल के लिए हम फर्नीचर को रेडी कर रहे हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सबसे एक हमारी गवर्नमेंट की नॉर्म है NABH, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उनको मैच करके ही हम हॉस्पिटल के फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पेशेंट को, क्योंकि हमारा जो भी इक्विपमेंट है वो डायरेक्ट पेशेंट के साथ रिलेटेड है, वो डायरेक्ट पेशेंट के टच में है।
वो उसके ट्रीटमेंट में एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करता है। अगर उस प्रॉब्लम, उस मटेरियल में, उसके प्रोडक्शन में, उसमें कोई भी अगर कमी रह जाएगी तो वो डायरेक्ट हमारी लाइफ को हार्म कर सकती है, मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरह से हमें इफेक्ट कर सकती है, पेशेंट को इफेक्ट कर सकती है। तो बहुत जरूरी है कि हम उसकी प्रॉपर नॉलेज रखें, बहुत जरूरी है एक्सपीरियंस के साथ काम करना, हर चीज को ध्यान में, किसी भी पॉइंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वी कांट। आप किसी भी और इंडस्ट्री को देखेंगे तो उसमें आप थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हो या कुछ अलग चीजें होती हैं, इसमें हम डायरेक्ट एक ह्यूमन के साथ अटैच हो रहे हैं इसके साथ। करेक्ट। तो मतलब थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो उसे पेशेंट केयरलेसनेस का चांस ही नहीं है। या केयरलेसनेस का चांस ही नहीं है। वी डोंट टेक, वी कांट अफोर्ड टू टेक चांस। करेक्ट। वो हम ले ही नहीं सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही रेगुलेटेड टाइप ऑफ बिजनेस हो गया, जिसमें मतलब गवर्नमेंट के नॉर्म्स सेट है, स्पेसिफिक है, वो फॉलो करना मैंडेटरी है। वो मैंडेटरी है, उसी के साथ ही हमें चलना पड़ता है और उन्हीं के साथ चलना चाहिए। लाइक मेरी कंपनी को ISO सर्टिफाइड कंपनी है, MSME सर्टिफाइड है, WHO GMP सर्टिफाइड है, और इस तरह से और भी सर्टिफिकेशंस होते हैं गवर्नमेंट के, BIFMA, OHSAS, NSIC। तो इन सबको लेके हम लोग साथ में चलते हैं। इस सबसे सर्टिफाइड है, इंस्पेक्शंस टाइम टू टाइम हमारी कंपनी की इंस्पेक्शंस होती हैं, तो हम इसके हिसाब से ही, हम गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, मेडिकल नॉर्म्स के हिसाब से ही काम करने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैम, ऑन टू दिस फर्दर, लाइक जैसे कि आप बता रही थी कि और बिजनेस के साथ में थोड़ा बहुत चल जाता है, बट इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली हमें काम करना पड़ता है। तो ऑन टू दिस की अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें इक्विपमेंट, उसमें जो चैलेंजेस आते हैं इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस या रेगुलेटरी गाइडलाइंस एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस, तो उसमें कितना अवेयरनेस का लेवल मैंडेटरी होता है कि मतलब यू कैन नॉट मिस आउट ऑन द फैक्टर, और उसमें क्या ऐसी पर्टिकुलर चीजें हैं जो, जैसे अभी आप बता रही थी, जो इस सेक्टर को एक अलग सेक्टर और स्पेसिफिक सेक्टर बनाती है? हमें सबसे पहले हमें ये चीज देखना पड़ता है कि जब हम किसी हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कि तो वो हॉस्पिटल किस डिजीज को क्योर करने के लिए बनाया जा रहा है। लाइक हमारी बॉडी में जो भी है उसकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से चलता है, उसके डॉक्टर्स अलग होते हैं, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, तो उसके इक्विपमेंट्स भी अलग अलग होते हैं। हम एक ही चीज को हर हॉस्पिटल में सप्लाई नहीं कर सकते। तो हर चीज के लिए, हर ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं, पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, गाइडलाइंस अलग अलग होती हैं। तो हमें उस सबको समझना, उसकी नॉलेज रखना कि किस चीज के लिए वो यूज होना है, वो पता होना बहुत जरूरी है कि वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम किस चीज, लाइक एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं सिर्फ OT टेबल का ही लूं, तो कहने को नाम OT टेबल ही आएगा कि उसमें ऑपरेशन होना है, पेशेंट का सर्जरी होनी है, दैट इज द OT टेबल। लेकिन वो सर्जरी आपकी बॉडी के किस पार्ट की होनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ब्रेन सर्जरी है तो उसकी अटैचमेंट्स अलग आएंगी OT टेबल के साथ। आपकी कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी है तो उसकी अटैचमेंट्स अलग आएंगी, वो उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन होगा टेबल। अगर मैं OT लाइट की बात लूं, तो अगर जैसे नर्व्स की, हमारी नर्व्स होती हैं, सर्जरीज होती हैं, अगर हमारी OT लाइट का फोकस सही नहीं होगा, उसमें कोई कमी होगी, तो वो नर्व, उसको प्रॉपर डॉक्टर नर्व को देख ही नहीं पाएंगे। राइट। और आपको पता है कि अगर एक भी नर्व अगर गलत कुछ हो गई, कुछ कट गई, तो पूरा नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो ये चीजों पे फोकस करना, इनको देखना, इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप टीवी, अगर दूसरी इंडस्ट्री में जाएं, सपोज आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो एक ही टीवी है, वो हर जगह चल रहा है, साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, यू नो। तो इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि हमें वो, हमारा वो प्रोडक्ट यूज कहाँ होना है, उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके ही नॉर्म्स और पैरामीटर्स के हिसाब से हमारी वो प्रोडक्शन हो, वो चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो वो एकदम स्पेसिफिक और प्रिसीजन पे काम होगा, और स्पेसिफिक होना चाहिए, वो कांट टेक चांस। और जो यूजेज है उसके बेसिस पे उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। राइट मैम। तो मैम, इसी के ऊपर अगर हम बात करते हैं, जैसे आज की डेट में हम लोग जैसे देखते हैं, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम्स वो बहुत अफेक्ट हो रहे हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज की वजह से। अगर हम इस बिजनेस में या इस सेगमेंट से बात करें, तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इफ सस्टेनेबिलिटी एंड इको कॉन्शियसनेस इज द की फैक्टर, तो कौन सी वो स्ट्रेटेजीज हैं जो इम्प्लीमेंट हमें करना बहुत जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, हॉस्पिटल और इक्विपमेंट्स या फर्नीचर जो बना रहे हैं उसमें, कि मिनिमम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो या मिनिमम एनवायरमेंट को हार्म हो, और हम जो क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम बखूबी मेंटेन कर पाए?
बेसिकली हमारी जो प्रोडक्शन होती है जो फर्नीचर की, तो उसमें क्या होता है कि वेल्डिंग का काफी पार्ट रहता है। मेटल की होती है, बेड्स वगैरह बनते हैं, ओटी टेबल्स वगैरह बनती है, तो वेल्डिंग का बहुत पार्ट होता है। तो वेल्डिंग में क्या होता है कि पॉल्यूशन काफी होता है। पहले जैसे आर्क वेल्डिंग चलती थी तो उसमें पॉल्यूशन बहुत होता था। तो अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब हम आर्क की जगह मिग, टिग, लेजर वेल्डिंग यूज करते हैं, जिससे पॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही मिनिमाइज कर दी गई है। करेक्ट। और उसके बाद सेकंड पार्ट रहता है उसकी फिनिशिंग, उसकी पेंटिंग का। पहले स्प्रे पेंट चलता था, वाटर पेंट चलता था, उससे वाटर पॉल्यूशन और स्प्रे पेंट से एयर पॉल्यूशन बहुत होता था। अब करेक्ट। उसकी जगह एक पाउडर कोटिंग का एक कॉन्सेप्ट आ गया है, एपॉक्सी पाउडर कोटिंग का, जो कि आप देखते हो कि गाड़ियों में हमारी होती है। हाँ। बेक्ड प्रोसेस कहते हैं उसे। तो उसमें हम लोग पार्ट्स को, पूरे टैंक्स होते हैं उसमें प्रॉपर डिप हो जाते हैं, और मतलब उस तरीके से पेंट होता है, हमारा पाउडर कोटिंग होती है वो। राइट, उससे राइट। भी हमारा जो है पॉल्यूशन का काफी ज्यादा वो इफेक्ट कम हो चुका है। So it तो हम helps to reduce जैसे the जैसे environment effect. या तो जैसे 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 आती हैं टेक्नोलॉजीज, तो मेन थिंग इज कि आपको टेक्नोलॉजीज को अपनाते रहना चाहिए। यू शुड हाँ। अपडेट योर सेल्फ ऑन रेगुलर बेसिस। करेक्ट। तो वो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को रेगुलर बेसिस पे अपडेट रखें, इको फ्रेंडली रखें, ज्यादा से ज्यादा उस चीज पे काम करें कि पॉल्यूशन की जो मात्रा है वो मिनिमाइज कर दी जाए। That's really a wonderful initiative done by you कि पॉल्यूशन को भी आप कम कर रहे हो और साथ में क्वालिटी को या कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हो, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। और क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें प्रिसीजन बहुत जरूरी है और क्वालिटी उसमें बहुत बहुत जरूरी मैटर है, करती है। तो क्योंकि आप लाइफ सेविंग क्वालिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज बहुत तो कर ही नहीं सकते। या करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि आप लाइफ सेविंग के लिए या लोगों की हेल्थ के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें कोई गुंजाइश ही लाइक वो नहीं हो इसे सकती। डॉक्टर्स को नेक्स्ट टू गॉड रखा जाता है। हाँ। तो डॉक्टर्स के काम करने के लिए इक्विपमेंट्स भी उतने ही अप टू द मार्क होने चाहिए, करेक्ट, दैट कि उनकी ड्यूटी वो पूरी अच्छे से निभा पाए। दे करेक्ट, कांट लैक इन देयर ड्यूटीज बिकॉज ऑफ आवर इक्विपमेंट्स। करेक्ट। तो कोशिश हम करते सिंपल हैं सी कि पूरा उन्हें रखा जाए। सिंपल सी चीज है, अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं है प्रॉपर तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। या वैसे ही अगर बिल्कुल मेडिकल बिल्कुल। सिस्टम की बात करें, डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना डॉक्टर। क्योंकि हम वो उस देखते हैं ना गाड़ी कई के कई फ्यूल है। हाँ, छोटा सा एक गलत दवाई दे दी या छोटा सा गलत एक बार हम्म, मेडी वो क्या कहते हैं सिस्टम्स यूज कर लिए, प्रॉपर चेकअप नहीं हुआ तो उसकी वजह से भी कई बारी लाइफ का डेंजर आता है। तो इसीलिए आप लोग जो काम कर रहे हो, डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, लोगों की हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। तो आई मस्ट थैंक यू टू यू एज वेल। और डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं वो तो है ही, बट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स लाइक यू इज रियली इमेंस। Now, ma'am, I'm coming back to you again. So, throughout your journey, you have been working for this business. I think 12-14 years के आसपास हो गए। उससे पहले आप अपने फादर के बिजनेस में भी सपोर्ट कर रहे थे। तो on to your journey, बिल्कुल। if you see who were the people supported you the most? फर्स्ट ऑफ ऑल माई पेरेंट्स, देन माई इन लॉज, और सबसे बढ़कर मेरे हस्बैंड। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो बाकी किसी का सपोर्ट मैटर ही नहीं करता शायद। True. या यही सीखा है मैंने शुरू से कि ना किसी का ट्रस्ट तोड़ो, कुछ ऐसा काम करो नहीं, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो फैमिली हो, यू हैव टू मेंटेन द ट्रस्ट। ट्रस्ट के ऊपर ही फैमिली चलती है और ट्रस्ट के ऊपर ही आपका बिजनेस चल सकता है। इसलिए Right. मेरी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, द नेम ऑफ इनोसेंट ट्रस्ट। दैट इफ यू आर डीलिंग विद आवर कंपनी देन यू कैन इनोसेंटली ट्रस्ट आवरसेल्फ, योर होल रिस्पांसिबिलिटी इज ऑन अस। ग्रेट। और ऑब्जेक्टिव भी वही है कि आप सपोर्ट कर रहे हो हेल्थ सिस्टम को और उसी के साथ में आपका जो टीम है बिजनेस का वो भी पूरी तरह से जेल करता है। दैट इज रियली वंडरफुल थिंग। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन इन लाइफ सभी की लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आपको आपका मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? अगेन सेम आंसर, फैमिली से। राइट। They all are very supportive। मतलब if I am thinking of someone something, तो मेरे सोचने से पहले they are agree कि yeah you can do it, you can do it, believe in yourself। सबसे बड़ा मैसेज ही यही है, believe in yourself। राइट। अगर इस दुनिया में, इस लाइफ में कुछ भी हो सकता है तो वो आप कर सकते हो। गॉड ने सबको एक जैसा बनाया है। एनीबडी कैन डू एनीथिंग, जस्ट अ मैटर ऑफ बिलीफ। इफ यू बिलीव योरसेल्फ यू कैन डू एनीथिंग योरसेल्फ। क्या आप Right. कर I really सकते हो तो आप appreciate कर your सकते हो। दैट्स इट। I really appreciate your thought and really important one also. रास्ते बन जाते हैं अपने आप। हाँ, जब आप चलोगे आगे तभी रास्ते बनेंगे, चलोगे ही नहीं तो रास्ते कहाँ से बनेंगे? देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अगर आप हाँ, चल रहे हो तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे। डेफिनेटली। यू जस्ट डोंट स्टॉप। करेक्ट।
So now, ma'am, if I talk about your take on success, what do you feel about success? How it is like really important in your life? अब्दुल कलाम जी की एक लाइन मैंने एक सुनी थी, उसी लाइन को लेकर मैं चलने की कोशिश करती हूँ। और आई थिंक वो लाइन सबको पता होनी चाहिए, पता भी होगी, और वो Correct. लेकिन उसको याद रखना बहुत जरूरी है। वो याद लाइन ये रखना है कि जरूरी है। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दे। तो वट एवर यू ड्रीम ऑफ, जस्ट लिव इट, जस्ट बस उसके पीछे पड़ जाओ, जस्ट लिव इट। कोशिश कभी मत छोड़ो। फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी कोई सक्सेस नहीं होता है। डोंट टेक इट लो कि आपका कुछ हो नहीं रहा या आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो तो उसको चेंज कर लो। एक कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप उस पर फोकस, उस पर कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट पे कोई सक्सेसफुल नहीं होता है, टाइम लगता है। जस्ट बी पेशेंट, बी कंटिन्यूअस ऑन योर गोल, यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। Right, very important. Yeah. The only thing is you should be persistent. Yeah. So, ma'am, last question. Any message, advice you would like to share with our viewers and listeners? व्यूअर्स एंड लिसनर्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि मोस्टली जो भी हमारे इंडियन पेरेंट्स हैं, अपने फैमिली बिजनेस को सिर्फ बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझें। बेटी को सब लोग मोस्टली, जहां तक मैंने नोटिस किया, ये सोचकर पढ़ा, बेटे को पढ़ाते हैं कि तूने तो कमाना है, तूने तो अपना करियर बनाना है। बेटी को ये सोचकर पढ़ाते हैं कि ठीक है, इफ यू वांट टू डू यू डू, आप करो। उनके मन में ये चीज बिठा दी जाती है कि ठीक है, अगर आपका करियर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो शादी तो कर ही देंगे, नहीं बना तो शादी कर देंगे, फिर तुम घर संभालना, फिर तुम अपनी लाइफ जी सकते हो। आप उसको अपब्रिंगिंग ही इस तरीके से करो, बेटे की तरह की, जिस तरह उसके लिए करियर बनाना इम्पोर्टेंट है, बेटी के लिए भी करियर की इम्पोर्टेंस बनाना बहुत जरूरी है। परमिशन तो देनी स्टार्ट हो चुकी है हमारी फैमिलीज में, लेकिन उसको पर्टिकुलर ड्रीम नहीं बनाया जाता। उसको अपब्रिंगिंग में ही ये चीज डालनी चाहिए दैट करियर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। मैरिज को सेकंड स्टेज पे रखना चाहिए, उसको एक सेफ्टी फीचर लेके चलते हैं कि कुछ हो गया तो ठीक, नहीं तो शादी कर देंगे। वो उनके माइंड में नहीं बिठाना चाहिए। उन्हें यही दिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि करना ही है, करना है। जैसे लड़के के लिए करना इम्पोर्टेंट है, वैसे लड़की के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यही मैसेज है मेरी तरफ से। बहुत जरूरी इसलिए भी हो गया क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। होना बहुत जरूरी। हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, आप देखो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, अगर दोनों मिलके कमाएंगे तभी तो ज्यादा बेटर रहेगा, चाहे वो बिजनेस से वैसे ही फैमिली मुश्किल होती है। ट्रू। सो इसीलिए रियली इम्पोर्टेंट कि हमको हमारे बेटियों को, फीमेल्स को भी आगे बढ़ाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करना चाहिए डेफिनेटली। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनको बचपन से ही ये सिखाना चाहिए कि भाई सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। उनको अपब्रिंगिंग में ही ये चीज डाल। Right. On this note, I must thank you, ma'am. It was really amazing insights, amazing discussions you had with us today, and also the things you have shared about your business, how your business is creating an impact in so many lives is really wonderful. And I must say, जो रोल है डॉक्टर्स का, जो रोल है, सेम रोल जो है वो मैन्युफैक्चरर्स का भी है, बिकॉज मैन्युफैक्चरर्स जो चीज बना के डॉक्टर्स को दे रहे हैं, तभी तो डॉक्टर अपनी ड्यूटी भी अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। So it's a correlation. Yeah. So I really thank you and I really enjoyed the conversation and looking forward to hear more from you again soon in future. Thank you so very much, ma'am. And I will also share your social media link along with the interview so that people can be in touch with you, take your help and guidance. Yes, sir. अभी मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी। अभी मैं अपनी कंपनी को, अपने इंडिया को एक इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट करके आई हूँ नेपाल में। Wow. तो दैट वाज इंडो नेपाल फर्स्ट अवार्ड शो। तो वहाँ पे हम लोग अभी गए थे, मी, भाग्यश्री, रंजीत, बिंदु दारा सिंह। तो वहाँ पे हमने उन्हें, नेपाल के जो बिजनेस के लोग थे, उन्हें, उनके फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग थे, वहाँ पे उन्हें सम्मानित किया है, उन्हें अवार्ड्स दिए हैं वहाँ पर जाके। अभी जून 2 को ही मैं गई थी। तो वहाँ पर भी काफी अच्छा था। दे वेलकम्ड अस वेरी वार्मली, बहुत वार्म वेलकम दिया उन लोगों ने हमें। तो अपने करनाल डिस्ट्रिक्ट से मैं पहली फीमेल पद्मश्री नॉमिनी हूँ 2023, करनाल हरियाणा से। वाओ। So this was I was not aware of. आपने मुझे आज बताया तो I really feel proud of you. Thank you for sharing. Okay. And guys, don't forget to check that out too. जो link होगा मैम का, you can be in touch with her and take help, guidance wherever you feel like. And thank you so very much everyone for watching and listening. I hope you all must have gathered a lot of information and enjoyed watching it. And don't forget to like, share and subscribe, comment also. Thank you everyone and have a good time. Bye bye.